Good afternoon and welcome all of you present here in today's webinar on personality development, stress management, public speaking and leadership qualities, organized by Postgraduate Department of Physics and Chemistry in association with Career Counseling and Internal Quality Assurance Cell. On the behalf of Principal DAV College, Abohar, and organized extend my warm welcome to our honorable speaker, Principal Dr. Ravinder Puri. It gives me immense pleasure to introduce the today's resource person, State Awardee Principal Dr. Ravinder Puri, Government College for Women, Ratia, Haryana, and in additional charge of KT Government College, Ratia. About his educational qualification and academic achievements, Dr. Puri did his post-graduation in psychology from Kurukshetra University and acquired a PhD degree in effect of pranayam and life skills on health, hope, happiness and harmony from University of Rajasthan. He has also done the short-term course in writing and multimedia video production. With the teaching experience of more than 36 years, as an associate professor in psychology, he has been honored with the Best Teacher Award in 2013 and recently felicitated in 2022 by the Health Department of Haryana for his services in field of mental health, beside many other awards. He has supervised more than 30 committees in his different capacities at Government College Sirsa and officiated as a member of various selection and inspection committees of CDLU and other universities. Being an active researcher and writer, he has been extensively publishing in various national and international journals, newspaper and magazine. He has published 4 books, including a famous book, Manovigyan Ke Jadui Mantra, through his credit. He has delivered a number of talks at various seminars, workshops, conferences, and chaired many scientific sessions. He has been invited as a resource person at various government programs, including EduSet program of Higher Education Department of Haryana. He has also managed and hosted a number of government programs and talk shows on women empowerment, drug de-addiction, female child, etc. Sir has presented many research papers in national and international journals. With all these accomplishments in the field of research and teaching, Dr. Puri has a great passion to serve the society and has been associated with various NGOs and government agencies, sport association to render his services as psychologist and counselor during pandemic also for the well-being of people. Last but not the least, with his leadership qualities, recently he has been unanimously elected General Secretary of Haryana Government College Principal Association. So without any further delay, I would like to invite Principal Dr. Ravinder Puri to share his expert opinion with the students and enlighten them with his talk. Thank you. And once again, I welcome you, sir, in this webinar. Thank you so much, sir. Over to you, sir. थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शेफाली जी। उससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मैं पूछना चाह रहा हूं कि मेरी आवाज आप लोगों तक सही पहुंच रही है? मेरी आवाज ठीक है? बिल्कुल। हेलो, हाँ जी। मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे बहुत ही बचपन के प्यारे दोस्त राजेश खत्री जी का, जिन्होंने मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं कि भाई मेरा अबोर आना जाना होता, मैं आप लोगों से मिलता, लेकिन ये राजेश जी ने बहुत अच्छा काम किया कि वेबिनार के माध्यम से मैं अपने अबोर के प्यारे बच्चों से मुलाकात कर रहा हूं, उनसे रूबरू हो रहा हूं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं डीएवी कॉलेज का भी विशेष रूप से, जिन्होंने मुझे आप लोगों से इस तरीके से मिलने का एक अवसर दिया। डीएवी कॉलेज से मेरे कई संबंध हैं। डीएवी कॉलेज अबोहर से मेरा पहला संबंध यही है कि डॉक्टर राजेश जो हैं वो मेरे बहुत
परम मित्र हैं और इस कॉलेज को, इस संस्था को अपना बहुत लंबे समय से उन्होंने सेवाएं दी हैं। दूसरी बात यह है कि मेरी वाइफ जो है वो भी इसी कॉलेज की स्टूडेंट रही हुई है। ये भी एक बहुत अच्छा संबंध है। और तीसरी बात यह है कि डीएवी अपने आप में भी एक बहुत महान संस्था है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों से मुलाकात कर रहा हूं, आप लोगों से रूबरू कर रहा हूं। आज की जो मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, जब बच्चों, प्यारे बच्चों, जब बात आती है भाषण की, लेक्चर की, तो अक्सर बच्चों के मन के अंदर एक बात आ जाती है, बोरियत आने लग जाती है कि ओहो अब तो आधा पौना घंटा लेक्चर सुनना पड़ेगा, बोर होना होगा। इसलिए मैं आप लोगों से कोई आज लेक्चर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, हम बातचीत कर रहे हैं। और चूंकि मुझे आज राजेश जी ने मौका दिया है, कल मौका दे ना दे, डीएवी मुझे मौका दे या ना दे, इसलिए आज मैं कर क्या रहा हूं कि मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर है। कोई बॉडी लैंग्वेज पे है, कोई करियर काउंसलिंग पे है, कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट पे है, कोई मोटिवेशन के ऊपर है। इस तरीके से बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो एक एक 1.5 घंटे के होते हैं। तो मैं आज एक अच्छा काम ये कर रहा हूं कि सभी टॉपिक्स में से कुछ कुछ चीजें उठाकर एक आप लोगों के सामने में लेकर आ रहा हूं। और इन तमाम चीजों से आप लोगों को जिंदगी में जो फर्क आने वाला है वो ये है कि जब आप यहां से उठ के जाएंगे, प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी जिंदगी की दिशा और दशा बदलने का फैसला कर चुके होंगे। मैं अपने लेक्चर्स के ड्यूरिंग बहुत सारी संस्थाओं में जाता हूं, बहुत जगह जाता हूं, बड़े बड़े शहरों में भी, छोटे शहरों में भी। मैं आप लोगों से एक बहुत ही बड़ी बात शेयर करना चाहता हूं कि अभी कुछ वर्ष पहले की बात है कि मुझे दिल्ली की एक एनजीओ ने कॉल किया और वहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपनी अपनी जिंदगी में बहुत बहुत ऊंचे मकाम हासिल किए थे छोटी उम्र में। कुछ आईआईटीएन थे, कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ और संस्थाओं से थे। तो उन सब लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने एक सम्मान समारोह कर रखा था आयोजित, और उसमें मुझे भी जाने का मौका मिला। तो मैं वहां पर अपना लेक्चर शुरू होने से पहले जब मैं बच्चों से मिल रहा था तो मैंने देखा कि मैंने उन बच्चों से पूछा, जब मैं उनसे गुफ्तगू की, थोड़ी सी बातचीत की, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग कितनी कितनी तनख्वाह ले रहे हैं। तो मैं ये जान के बड़ा हैरान हुआ कि उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो लगभग यूं मान के चलिएगा कि 3 से 5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह ले रहे थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जिनका 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज भी था और उनकी उम्र 25-26 साल और 27 साल के आसपास थी। तो मुझे बड़ा बहुत हैरानी सी हुई कि भाई इतनी छोटी उम्र में ये बच्चे इतनी तनख्वाह ले रहे हैं, जितनी तनख्वाह तो मतलब हम छोटे शहर के जो बच्चे होते हैं वो कभी उनके बारे में सोचते भी नहीं है। और मैंने जब देखा कि उन बच्चों के पास जब वो बच्चे आ रहे थे तो मैंने देखा कि उनमें से बहुत सारे बच्चों के पास अपनी अपनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं। किसी के पास मर्सिडीज है, किसी के पास ऑडी है, कोई अपनी BMW में आ रहा है। तो मतलब बहुत ही छोटी सी उम्र के अंदर ही वो इतने, मतलब उनके पास पैसे भी थे, उनके पास शोहरत भी थी, नेम फेम भी था और उनके चेहरे पे खास किस्म की आभा भी थी। तो मैंने सोचा कि हो ना हो इन बच्चों के अंदर कोई ना कोई ऐसी खास बात जरूर है जो हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं, जैसे अबोर के बच्चे हैं या छोटे शहरों के हमारे जो बच्चे होते हैं, शायद उनके पास वो ना हो। तो मैंने क्या देखा कि मैंने जो नोटिस करना शुरू किया कि इन बच्चों के पास खास क्या है। तो मैंने देखा कि उन बच्चों के पास 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, एक मुंह है और उनके पास 2-2 हाथ हैं। हर हाथ के अंदर 5-5 उंगलियां हैं। और फिर मैं जब अपने शहर में आता हूं, अपने क्षेत्र में आता हूं, चाहे वह हरियाणा पंजाब का कोई भी क्षेत्र हो, जब मैं वहां आता हूं तो वहां के मैंने जब देखा तो मैंने देखा कि हमारे शहर के बच्चों के पास भी बिल्कुल वैसा का वैसा सब कुछ है। आंखें हैं, नाक है, कान है, मुंह है, हर हाथ के अंदर 5-5 उंगलियां हैं, 2 पैर हैं। तो मैं बड़े हैरान हुआ कि फिर हमारे शहर के बच्चों में और उन बच्चों में क्या अंतर है। वो 24-25 साल की उम्र के अंदर 50 लाख, 70 लाख, 80, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का पैकेज ले रहे हैं। और हमारे यहाँ के बच्चे जब नौकरी के लिए जाते हैं तो वो छोटी छोटी नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि हमारे शहर के बच्चों के पास
वो सब कुछ नहीं है जो इनके पास है। अब यहां तक ये तो मैंने बता दिया आपको कि उन बच्चों के हाथ पैर वही सब कुछ थे जो आप लोगों के हैं, जो मेरे अबोर के बच्चों के पास है। फिर मुझे लगा कि शायद इन बच्चों की आईक्यू ज्यादा तेज होगी, क्योंकि मैं जब कभी अपना कोई सेमिनार, बड़ा सेमिनार देने जाता हूं तो मेरे पास साइकोलॉजिस्ट की जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं या असिस्टेंट्स होते हैं उनकी टीम होती है। तो उन बच्चों का जो आईक्यू चेक किया गया था उससे पहले, मेरे वहां पहुंचने से पहले, तो मैंने ये पाया था कि उन बच्चों की आईक्यू भी हमारे शहर के बच्चों जैसे, अबोहर के बच्चों जैसी ही थी। अब बच्चों की आईक्यू भी सेम है, शारीरिक गठन भी सेम है, सब कुछ सेम है। तब मेरे मन के अंदर ये आया कि आखिर मामला क्या है, हमारे शहर के बच्चे इतने पीछे क्यों रह जाते हैं, और वो बच्चे जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो बहुत छोटी उम्र के अंदर इतनी धन दौलत कमा रहे हैं, इतनी हाई प्रेस्टिजियस पोस्ट के ऊपर हैं, आखिर उनमें और हमारे शहर के बच्चों में क्या है। तो मैंने जब उनका देखा तो मैंने देखा कि हमारे शहर के बच्चों की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है कि हमारे शहर के बच्चों के पास सपने छोटे छोटे होते हैं। हमारे शहर के बच्चे बड़े सपने नहीं देख पाते हैं। हमारे शहर के बच्चे बहुत छोटी छोटी चीजों के बीच में ही उलझे रहते हैं, हमारी जिंदगी की बहुत छोटी छोटी बातों के बीच में उलझे रहते हैं। एक बहुत ऊंचे से पहाड़ के ऊपर एक बाज, आप जानते होंगे बच्चों, बाज बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला एक पक्षी होता है। बाज एक बहुत ऊंचे जगह के ऊपर उसका एक घोंसला था, और वहां पर एक बाज ने, जो फीमेल बाज थी, उसने एक अंडा दिया, और वो अंडा हवा के झोंके से कहीं फिसलता फिसलता नीचे जा गिरा, और पहाड़ी से होता हुआ नीचे एक बहुत छोटी बस्ती थी। उस बस्ती के अंदर किसी किसान ने मुर्गियां पाली हुई थी, और उस मुर्गियां जो घोंसला था उसके अंदर अंडा जा गिरा। वहां पर एक मुर्गी ऑलरेडी अपने अंडों पर बैठी हुई थी, तो मुर्गी ने देखा कि भाई ये तो मेरा अंडा नहीं है, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद काउंटिंग करने में कुछ दिक्कत हो गई है, इसलिए उसने उसे अपना ही अंडा समझा और उस अंडे को भी अपने नीचे रख लिया इंक्यूबेशन के लिए, और उसको गर्माहट देनी शुरू की ताकि उसमें से चूजे निकले। कुछ दिनों के बाद उसके अंडों में से चूजे निकले। अब 2-3 चूजे तो बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन एक चूजा बिल्कुल अलग था। अब ये जो अलग वाला चूजा था, अब मुर्गी ने देखा तो उसने सोचा कि ये हो ना हो, पता नहीं कैसा अजीब सा, लेकिन आपको तो पता ही है कि मां तो मां ही होती है। अब मां ने सोचा कि भाई हो सकता है कि ये 3 जो मेरे चूजे हैं एक जैसे हैं और एक चूजा बिल्कुल अलग है, चलो कोई बात नहीं। अब उसने बच्चों का पालन पोषण किया, उनको दाने चुगने सिखाए, उन्होंने अपना पालन पोषण जब बच्चों का हो गया, थोड़े समय के बाद जो वो बाज वाला बच्चा था, अब वो हर रोज अपने घर की मुंडेर पर बैठता और वो उड़ने के लिए कोशिश करता, क्योंकि वो बाज था। अब जैसे ही उसको उड़ने की कोशिश करता तो पीछे से उसकी मम्मी मुर्गी और उसके पापा मुर्गा उसकी टांग पकड़ लेते या उसकी पूंछ पकड़ लेते, भाई तूने नहीं उड़ना। तो वो कहता मैंने उड़ना क्यों नहीं? तो वो कहते बेटा हम मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं, हम मुर्गे मुर्गियां उड़ते नहीं होते हैं, क्योंकि हम उड़ने के लिए नहीं है, हम तो सिर्फ थोड़ी सी उड़ान भरते हैं और फिर बैठ जाते हैं, हम उड़ने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तो वो धीरे धीरे करके वो जो बाज था वो उन्हीं मुर्गों के बीच में घुलने मिलने लग गया और बिल्कुल वैसी ही जिंदगी जीने लग गया जैसे कि मुर्गे और मुर्गियां जीते थे। एक दिन वो बाज बैठा हुआ था बच्चा, अचानक ऊपर से एक बाज ने उड़ते हुए देखा कि हमारा कोई साथी नीचे बैठा हुआ है, तो वो नीचे आया और आकर उसके पास बैठ गया। भाई तू यहां कैसे? कहता भाई मैं यहां कैसे नहीं हो सकता, ये मेरी मुर्गी मम्मी है, ये मेरी मुर्गी पापा है, ये मेरी मुर्गियां कजन सिस्टर्स हैं, ये मेरी मुर्गे कजन ब्रदर्स हैं। तो बहुत ही उसने प्यार से अपने सारे रिश्तेदारों से मिलवाया। तो वो बोले भाई ऐसा है कि तू मुर्गा नहीं है, तू बाज है। तो वो कहता बाज क्या करता? वो कहता देख दूर आसमान में जो इतने पक्षी उड़ रहे हैं ना, वो बाज हैं। कहता अच्छा मैं भी ऐसे उड़ सकता हूं? तो कहता हाँ मैं उड़ सकता हूं। तो कहता फिर मैं अभी तक उड़ा क्यों नहीं? जब मैं उड़ने की कोशिश करता था तो मेरी मुर्गी मम्मी या मुर्गे पापा मुझे कह देते थे भी तू तो उड़ ही नहीं सकता। वो कहता भाई तू एक बार उड़कर तो देख। और उस मुर्गे ने, जैसे वो सारे मुर्गे बैठे हुए थे और पास में बाज बैठा था, बाज ने जैसे उड़ान लगाई और बच्चों को थोड़ी देर के बाद तो पूरे आसमान को छूने लगा। प्यारे बच्चों, आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही हो। आप लोग
उड़ने के लिए ही पैदा हुए हो, आप लोग आसमान को छूने के लिए ही पैदा हुए हो। लेकिन हमारा जो ढांचा है, वो हमारी परवरिश जो होती है, वो बाई चांस मुर्गे मुर्गियों के बीच में होती है। हमारे छोटे छोटे जो शहर होते हैं, वहां पे छोटे ख्वाब होते हैं। और बहुत बार तो क्या होता है कि जब बच्चे जब स्कूलों के अंदर पढ़ रहे होते हैं, तो कई टीचर भी ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को कह देते हैं कि मेरे से लिखवा लो, तुम कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं। जब पेरेंट्स मीट होती है, तो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स को भी टीचर बोलते हैं कि ये आपका बच्चा कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, ये बस इतना ही की है कि इसके इतने ही नंबर आएंगे। जब आप अपने घर में रहते हैं, कई बार आपके मम्मी पापा भी आपको कह देते हैं कि तू तो निकम्मा है, या अच्छा काम नहीं कर सकता है। ये सारे के सारे लोग, प्यारे बच्चों, आप जैसे बाज जैसे बच्चों को मुर्गा और मुर्गियां बनाने की कोशिश करते हैं। जितने भी लोगों को अभी तक नोबेल प्राइज मिला है, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने अपनी जब जीवनियां लिखी हैं, अपनी बायोग्राफीज लिखी हैं, उन्होंने लिखा है बीच में कि उनको जिंदगी के किसी न किसी समय में मां बाप ने, पड़ोसी ने, टीचर ने, किसी न किसी ने उनको जरूर कहा था कि तुम मुझसे लिखवा लो, कभी तुम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हो। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा था कि तुम्हारे सर के अंदर गोबर भरा हुआ है। प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी चीज बेसिकली क्या है कि हम सब लोग ह्यूमन डीएनए से बने हुए हैं। हमारा, आप साइंस के बच्चे हैं बहुत सारे, आप सब समझते हैं कि हमारा जो डीएनए, ह्यूमन डीएनए है, वो बिल्कुल अलग डीएनए है। और हमारे डीएनए के बीच में ये बात भरी पड़ी है कि हम लोग उड़ने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि हम मुर्गे मुर्गियां नहीं हैं, हम बाज की तरह हैं, हम उड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो किसान परिवारों से संबंध रखते होंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता होगा भी खेतों के अंदर क्या किया जाता है। आपने देखा होगा कि कभी एक किसान को देखा होगा, जब वो खाद डालता है तो वो खाद इस तरीके से डालता है कि पूरे खेत के सभी पौधों तक पहुंच जाए। पानी डालता है तो इस तरीके से डालता है कि पूरे खेत के पौधों तक पानी पहुंच जाए। क्या कभी आपने जिंदगी में ऐसा किसान भी देखा है जो ये सोचे कि मैंने इधर वाले पौधे को ज्यादा पानी डालना है, इधर वाले को कम डालनी है, इधर खाद कम डालनी है, इधर ज्यादा डालनी? कभी ऐसा भी होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जो किसान है वो अपने सभी पौधों को खाद एक जैसी डालता है। बिल्कुल ऐसे ही प्यारे बच्चों, जब भगवान ने, जब प्रकृति ने, जब नेचर ने हमारे पास बुद्धिमत्ता, उत्पादकता, उपलब्धियां, योग्यताएं, क्षमताएं बांटी थी, उस समय भगवान ने भी ये भेद नहीं किया था कि भाई दिल्ली वाले बच्चों को तो बुद्धिमत्ता ज्यादा दे दो, बेंगलोर वालों को ज्यादा दे दो और अबोर वाले बच्चों को कम दो। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा। आज जितने भी बच्चे मेरे इस समय मेरी बातचीत सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, मैं आपको यह बता दूं कि अगर लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लागू किया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां पर बैठे हुए लगभग 10 से 20% बच्चे ऐसे हैं जो आज भी कॉलेज निकलने के बाद 4 से 5-6 लाख रुपए महीने की कमाने की हैसियत रखते हैं। इन्हीं बच्चों में से ऐसे बच्चे भी बैठे हैं जो आईएएस और आईपीएस भी बन सकते हैं, बिजनेस टाइकून भी बन सकते हैं, लेकिन वो उन बच्चों को अभी पता नहीं है, क्योंकि उनके जो बाहरी और सारा माहौल है, उन्होंने उसको, उन बच्चों को मुर्गे मुर्गियों की मानद बना के रख दिया है। याद रखना, आप लोग मुर्गे मुर्गियां नहीं हैं, आप बाज की तरह हैं, आप आसमान को छूने के लिए ही बने हैं। लेकिन ये सारी चीज करने के लिए आपको करना क्या है? आपको ये सबसे जरूरी चीज है कि आपको करना क्या है, ये आपको चीज समझनी है। और अगर आपको ये चीज समझनी है तो फिर आपको कहीं ना कहीं जो सारी चीज आपको जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको आपने तसल्ली से समझना है। पहली बात, आज मैं आप लोगों को वो गुण बताने वाला हूं जो कामयाब बच्चों के अंदर होते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर जो जिंदगी के अंदर बहुत कामयाब होना चाहते हैं, जिंदगी में बहुत ऊंचाई को छूना चाहते हैं। आज वो सीक्रेट्स जो मैंने 35-36 ईयर की अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस से, मैंने लगभग 1000 से ज्यादा सेमिनार्स मेरे हो चुके हैं पूरी इंडिया में, वेबिनार्स के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में।
और मैं बहुत सारे हजारों बच्चों से मुलाकात करता रहता हूं। आज ये समय है कि मैं आप लोगों से जो आज मैं आपको सीक्रेट्स जो है वो शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहला सीक्रेट आप लोगों को जो समझना है, मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाला हूं। एक बार क्या हुआ कि मैं कॉलेज के प्लेसमेंट सेल का इंचार्ज होने के नाते मैंने कोशिश की कि मैं बहुत सारे बच्चों को, हमारी बहुत सारी कंपनियों को हम बुलाते थे, लेकिन छोटे शहर होने करके बहुत सारी कंपनियां हमारे पास नहीं आती थी। तो मैंने कोशिश की कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए मैंने बच्चों को भेजना शुरू किया। मैंने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए बच्चों को भेजने के लिए बनूर नाम की एक जगह है पंजाब में, वहां पर मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बच्चों को भेजा, जहां पर एक विप्रो कंपनी और इन्फोसिस, दो कंपनियों ने आना था। तो मैंने वहां पर बहुत सारे बच्चों को भेजा। जब बच्चे मेरे पास आए और वो वहां जाने की तैयारी कर रहे थे, तो वो शुभकामनाएं और आशीर्वाद लेने के लिए आए। तो उनमें से एक ऐसा बच्चा था जो मेरे पास बैठा हुआ था। जब वो उठ के जाने लगा तो मैंने उसको बधाई दी, उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। उसको मैंने कहा कि भाई मुझे लगता है तुम्हारा हो जाएगा। तो वो पीछे पीछे था, उसके बाद वो चला गया। कुछ दिनों के बाद वो बच्चा वापिस आया और उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। तो मेरे जो साथी दोस्त बैठे थे उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई कि आपको कैसे पता चला कि इस बच्चे की सिलेक्शन हो जाएगी? क्योंकि मैंने कहा क्योंकि इस बच्चे की जो आंखों की चमक है वो बता रही थी कि इस बच्चे की सिलेक्शन हो जाएगी। प्यारे बच्चों, अगर मुझे कभी किसी इंटरव्यू में बुलाया जाता है, जहां पर मनोवैज्ञानिक रूप से बुलाया जाता है, जहां पर मैंने बैठना होता है, कुछ सवाल नहीं पूछना होता, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से देखना होता है, तो मैं किसी भी बच्चे को देखकर यह बता सकता हूं कि जिंदगी में कितना कामयाब होगा। इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो क्या है? इसके पीछे की साइकोलॉजी, जो सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है, वो ये है कि वो जो बच्चे होते हैं, कामयाब होते हैं, मैंने देखा है कि उनकी आंखों के अंदर हजार हजार वाट के बल्ब जल रहे होते हैं। जब हम क्लास में भी बैठते हैं तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इस तरीके से उदास होकर बैठते हैं, सुस्त होकर बैठते हैं। उनकी आंखों के अंदर कोई चमक नहीं होती है, उनकी आंखों के अंदर कोई रौनक नहीं होती है, उनकी आंखों के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होती है, उत्सुकता नहीं होती है। जबकि मैंने देखा कि जो बच्चे जिंदगी में कामयाब होने वाले होते हैं, जब वो कक्षाओं में भी बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं, तो वो टीचर को ऐसे देख रहे होते हैं, इतने गौर से देख रहे होते हैं, टीचर की हर एक्टिविटी को, हर बॉडी के जेस्चर पोस्चर को देख रहे होते हैं, और साथ में उनकी आंखों के अंदर चमक होती है। ये जो चमक का एक जो इसका मंत्र है, आखिर ये चमक आती कहां से है? ये क्या चीज है जो बच्चों को कामयाब करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? आप लोगों ने कभी ये चीज को समझा नहीं होगा, लेकिन समझिएगा, आज बहुत जरूरी है। अगर आपको ये बात समझ आ जाएगी तो फिर आपको कामयाबी का रास्ता भी अपने आप ढूंढना आ जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब मनोवैज्ञानिकों ने जब शारीरिक आधार पर देखा, तो यह देखा कि जो बच्चे जिंदगी में बहुत कामयाब होते हैं, या जो लोग जिंदगी में बहुत बड़े सपने देखते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते होते हैं, उनके ब्रेन के अंदर एक खास किस्म का केमिकल होता है जो हमें एनर्जाइज करता है, और उस केमिकल का नाम होता है डोपामिन। साइंस के बच्चे शायद जानते भी होंगे, अगर बायो के बच्चे बैठे होंगे तो जरूर जानते होंगे। हमारी ब्रेन के अंदर बहुत सारे 100 किस्म से ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स बहते हैं। सेरोटोनिन है, नोरेपिनेफ्रिन है, गाबा है, इसी तरीके से डोपामिन है। यह देखा गया है कि जो लोग बड़े ख्वाब देखते हैं, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, उनके अंदर डोपामिन की मात्रा कंपैरेटिवली आम बच्चों से, आम लोगों से ज्यादा होती है। डोपामिन जिन लोगों में ज्यादा होता है, उनकी खास बात क्या होती है? वो डोपामिन आने के कारण उनके चेहरे पे ग्लो रहता है, उनकी आंखों में चमक रहती है, उनकी बॉडी के अंदर जो एक खास किस्म की स्पीड होती है वो रहती है, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा एनर्जी रहती है। अगर आप दुनिया के कामयाब लोगों को देखो, आप फिल्म स्टार्स को देखो, आप प्लेयर्स को देखो, आप विराट कोहली को देखो, सलमान खान को देखो, शाहरुख खान को देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को देखो, या किसी और नेता को देखें, आप देखेंगे जितने भी कामयाब लोग होते हैं, उनकी स्पीड आम आदमी से 20% ज्यादा होती है। वो ज्यादा तेजी से चलते हैं, क्योंकि उनके अंदर डोपामिन होता है।
और डोपामिन आता कहां से? वो हमारे दिमाग से एक प्रोडक्ट है, वो तभी पैदा होता है जब हम अपने आप को एनर्जाइज करते हैं, जब अपने आप को बड़े सपने देखते हैं, जब हम अपने आप में बड़ा जोश लेकर आते हैं, तब हमारी आंखों में वो चमक आती है। और जब हमारी आंखों में वो चमक आती है तो वो कहीं ना कहीं ट्रांसमिट होती है सामने वाले के दिमाग में, देखने वाले को एहसास होता है कि यार ये बंदे के अंदर कोई ना कोई है। वो कहते हैं ना कि यार मैंने ये देखा कि इसके अंदर कोई आग है। तो वो जो आग है, जो आप समझ रही हैं कि जो आग होती है, वो बेसिकली आग यही होती है कि अंदर से एक बड़े सपने होते हैं। तो पहली चीज बच्चों आपको आज क्या समझनी है, वो ये समझनी है कि आपको बड़े ख्वाब देखने हैं, क्योंकि आपको अपने चारों तरफ लक्ष्मण रेखाएं नहीं खींचनी है, आपने लिमिटेशंस नहीं अपने चारों तरफ रखनी है, क्योंकि आप मुर्गे मुर्गियां नहीं हो, आप बाज हो, और बाज की कोई लिमिट नहीं होती है। जितना विशाल आसमान होता है, बिल्कुल उतना ही विशाल पूरी ये दुनिया, ये कायनात जितनी फैली हुई है, बाज जो है उसको पूरा अपना घर समझता है। इसी तरीके से आप अपनी चीज को भी समझिएगा कि आप अपने आप को बाज ना समझिएगा। आप अपने चारों तरफ लिमिटेशंस मत रखिएगा, आप अपने चारों तरफ लक्ष्मण रेखाएं मत खींचिएगा। आप जितना बड़ा सोच सकते हैं, जितना बड़ा सोच सकते हैं, उतना बड़ा सोचिएगा। सोचने के बाद आपने अपने दिमाग को, क्योंकि आपका दिमाग आपका नौकर है और आपका दिमाग ही सारी चीजों को कंट्रोल करता है। अगर आपने एक बार अपने दिमाग को यह समझा लिया कि मैं जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूं, तो याद रखना आपका दिमाग फिर आपको कामयाब होने के लिए कोशिश करेगा। वो किसी फिल्म में शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि एक बार आप सोच लेते हो तो फिर उसके बाद पूरी कायनात कोशिश करना शुरू कर देती है आपको कामयाब करने के लिए। ये वही चीज है। आपके दिल में बड़े अरमान होंगे, आपके अंदर एनर्जी होगी, आपके अंदर बड़े सपने होंगे, आपके चारों तरफ कम लिमिटेशंस होंगी, तो आपको जिंदगी में आपका पहला कदम आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बड़ी चीज ये आती है कि भाई बड़े अरमान तो ले लिए, बड़े सपने भी आ गए, एनर्जी भी आ गई, लेकिन अब लक्ष्य कैसे करें? अब थोड़ी सी बात हम लक्ष्य निर्धारित करने के ऊपर कर रहे हैं कि आखिर हम लोगों ने गोल सेट कैसे करना है। और आपने देखा होगा कि जब भी नया साल शुरू होता है, नया एकेडमिक सेशन शुरू होता है, हम नई नई कापियां लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, भाई इस साल तो मैंने ऐसे तैयारी करनी है। और वो जब समय बीत जाता है, थोड़े समय के बाद वो सब तैयारियां व्यारियां सब चीजें एक तरफ धरी की धरी रह जाती हैं। आप फिर से अपने पुराने वाले ढर्रे के ऊपर आ जाते हैं और जिंदगी में आप फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं, आप अपनी बेस लाइन पे आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी दिक्कत क्या है? हमारे लक्ष्य तो होते हैं, लेकिन हमारी जो लक्ष्य होते हैं वो स्मार्ट लक्ष्य नहीं होते हैं, स्मार्ट गोल्स नहीं होते हैं। तो अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है, तो जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े कामयाब लोग होते हैं, उनके गोल्स भी स्मार्ट होते हैं। तो आपके पास स्मार्ट गोल होना चाहिए। तो स्मार्ट गोल के बारे में मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ में बता रहा हूं। चूंकि मुझे बहुत थोड़ी देर ही बोलने के लिए मिली है, 15-20 मिनट मेरे बोलने के और रह गए हैं, इसलिए मैं इसको संक्षिप्त करते हुए आपको पहले गोल के बारे में बता रहा हूं कि आपका स्मार्ट गोल कैसा होना चाहिए। देखिएगा, स्मार्ट गोल का अंदर अगर आप देखेंगे तो स्मार्ट के अंदर भी स्पेलिंग में SMART आता है। तो आप समझिएगा, पहली चीज होती है कि आपका जो गोल है वो S, यानी कि स्मार्ट की स्पेलिंग क्या है? SMART। तो पहले S से शुरू करते हैं। S का मतलब है स्पेसिफिक। हमारा पंगा क्या है कि हम मतलब क्या करते हैं? आप सोचिएगा, अगर हम किसी बस स्टैंड पे जाके खड़े हो जाएं और फिर हमारे पास कोई ये हो ही ना कि हमने जाना किधर है, तो हम कहां जाएंगे? ये बस दिल्ली वाली खड़ी है, ये चंडीगढ़ की खड़ी है, ये राजस्थान के लिए जाने के लिए गंगानगर जानी है, या बोर्ड ये वहां से वहां जानी है, सिरसा जानी है। तो बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आपका जब तक गोल स्पेसिफिक नहीं है, आपके दिमाग को कैसे पता चलेगा भाई आपने जाना कहां है? आपने दिमाग को कह दिया कि मैंने जिंदगी में बड़ा कामयाब आदमी बनना है। अरे ये क्या बात हुई? बड़ा कामयाब आदमी बनना है, बड़ा बनना है, कामयाब बनना है, दिमाग को कुछ समझ नहीं आएगा। यू हैव टू स्पेसिफाई कि भैया मैंने जिंदगी में क्या बनना है।
अब मान लीजिएगा कि किसी बच्चे का ये एक सोचने का तरीका है कि मैंने तो एक आईएएस ऑफिसर बनना है, डन। अब ये स्पेसिफिकेशन हो गई कि भैया मैंने आईएएस ऑफिसर बनना है। अब इसके बाद दूसरी चीज क्या है? एम, आपका जो गोल है वो मापने योग्य होना चाहिए, मतलब वो क्वांटिटेटिव होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूं, बड़ा कामयाब होना चाहता हूं। अब बड़ा कितना कामयाब होना चाहता, दिमाग को नहीं पता चल रहा। याद रखिएगा, अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है तो आपने आपका दिमाग जिसने सारा काम करना है भाई वो मालिक के कहना मानेगा। तो आप मालिक होने के नाते उसको गोल तो बताओ भी करना क्या है। तो पहली बात हो गई कि आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। अब आपने अपने दिमाग को यह बताना है कि भैया मैंने आईएएस बनना है, ये स्पेसिफिकेशन है। आईएएस के अंदर मैंने पहले 10 रैंक में से कोई रैंक लेना है। अब आपके दिमाग को यह समझ आ गई कि आपका जो गोल है वो 10 रैंक से नीचे का लेने का है। अब ये आपका दिमाग आपको माप तैयारी कर रहा है उसके लिए। अब आपके बाद उसके बाद दूसरी चीज क्या आती है? आपका जो गोल है वो आपका गोल अटेनेबल होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप अभी सोचना शुरू कर दें कि मैं चांद पे एक कोठी बनाऊंगा, उस बेंगलोर के अंदर एक गाड़ी रखूंगा। ऐसा गोल नहीं होना चाहिए। आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो छू लेने योग्य हो, जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो SMA अभी तक आपको मैंने बताया, स्पेसिफिक होना चाहिए गोल। उसके बाद आपके पास मेजरेबल गोल होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए। और फिर आता है RR का मतलब होता है आपका गोल रेलेवेंट होना चाहिए। यह शब्द बहुत अच्छे तरीके से आपको बच्चों समझना है। रेलेवेंट का मतलब क्या है? रेलेवेंट का मतलब पहले समझने से पहले आप 4 चीजें समझ लीजिएगा जो हम करियर काउंसलिंग के अंदर बच्चों को, लोगों को, पेरेंट्स को समझाते हैं। पहली चीज होती है इंटरेस्ट, दूसरी चीज होती है आपका एटीट्यूड। पहली चीज आपका इंटरेस्ट हो गया, दूसरी चीज आपका एटीट्यूड हो गया कि आपका दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद होती है आपका एटीट्यूड। अब ये चीज को समझिएगा। सबसे पहली चीज है आपका इंटरेस्ट। जैसे कि मान लीजिएगा अगर मैं एक करियर काउंसलर की तरह बात करूं तो मैं आपसे पूछूंगा भी आपका इंटरेस्ट क्या है। अब आप कहोगे सर मेरा इंटरेस्ट तो पेंटिंग करने में, कोई कहेगा मेरा गाना गाने में इंटरेस्ट है, कोई कहते हैं मुझे घूमने का इंटरेस्ट है, कोई कहेगा मुझे फोटोग्राफी का इंटरेस्ट है, कोई कहेगा मुझे बॉडी बनाने का शौक है, कोई कह। तो ये सब आपके इंटरेस्ट हैं। याद रखिएगा, इंटरेस्ट आपकी क्षमताओं के अकॉर्डिंगली हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इंटरेस्ट हम लोगों से देखकर भी बना लेते हैं कि आपका चाचे के, मामे का, बुआ का बेटा आईएएस बन गया तो आपके घर वालों ने भी आपकी पूरी क्लास लगा दी, भाई वो देख आईएएस बन गया, अब तूने भी आईएएस बनना है। या आपके मन में उसको खुद ही देखकर इंटरेस्ट आ गया कि यार वो आईएएस बना तो मैंने भी आईएएस बनना है। ये इंटरेस्ट है। और दूसरी चीज होती है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है आपका सोचने का नजरिया। और आपका सोचने का नजरिया भी विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम धीरे धीरे तैयार होता है कि आप किसी चीज के प्रति कैसा, आपकी आइडियोलॉजी, मैंने अमीर बनना है, मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने पावर लेनी है, आपकी कैसी अचीवमेंट मोटिव आपके अंदर काम कर रहा है, ये आपका सोचने का तरीका एटीट्यूड कहलाता है। लेकिन ये दोनों चीजें तभी काम करती हैं जब अगर आपके अंदर तीसरी चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। ये जो रेलेवेंट वर्ड है आपको इससे समझना है। रेलेवेंट का मतलब है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। एप्टीट्यूड का मतलब है कि हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ खास बात है। आपके अंदर भी कुछ खास बात है। कुछ लोग आपने देखा होगा, सुबह वाले लोग होते हैं, वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, रात को 8-9 बजे सो जाते हैं। कुछ लोग दिन वाले लोग होते हैं, जो सुबह वाले नहीं होते, वो दिन वाले होते हैं, वो 7-8 बजे उठते हैं और 10-11 बजे सो जाते हैं। कुछ लोग रात वाले लोग होते हैं, वो 11-12 बजे तक सोए उठते हैं और उसके बाद वो रात को 2-3 बजे तक स्टडी करते हैं। तो ऐसे ही आपकी ये क्षमताएं हैं। इसी तरीके से आपके एप्टीट्यूड है, आपकी इंटेलिजेंस, आपका सोचने का नजरिया, आपका नर्वस सिस्टम, आपके दिमाग की बनावट, आपके दिमाग के अंदर जो आपके दिमाग के जो पैरामीटर्स हैं, जो पार्ट्स हैं आपके दिमाग के, वो किस क्षेत्र के अंदर ज्यादा हैं।
आपके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी ज्यादा है, आपके अंदर काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ज्यादा है, आपके अंदर लोगों से बातचीत करने की जो एक कला होती है वो आप में ज्यादा है, या आपको अपने आप को नियंत्रण करने की कला आप में ज्यादा है, या आपके अंदर म्यूजिकल एप्टीट्यूड है। ये तमाम चीजें आपकी रेलेवेंस से संबंध रखती हैं। आपको गोल बनाते समय अपनी क्षमताओं को, अपनी एप्टीट्यूड को पहचानना है, अपने एटीट्यूड और अपने इंटरेस्ट को नहीं। लोग काउंसलर्स के पास जाते हैं और काउंसलर उनको उनका इंटरेस्ट देखकर उनको बता देते हैं कि तुमने जिंदगी में ये बन सकते हो। भाई वो इंटरेस्ट होते हैं, वो आपके सीखे सिखाए रटे रटाए दुनिया से देखकर नकल मार के किए होते हैं। असली आप क्या हो वो आपके एप्टीट्यूड है, और हर बंदे का हर एप्टीट्यूड नहीं होता है। हो सकता है कि कोई बंदा पढ़ाई के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी में, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में अच्छा नहीं है। जो अच्छा नहीं होगा वो फिजिक्स में अच्छा नहीं होगा, वो केमिस्ट्री में अच्छा नहीं होगा, वो मैथ में अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है वो बेकार है। हो सकता है कि उसके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस हो। स्पेशल इंटेलिजेंस का मतलब जगहों के बारे में, तो वो बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बन सकता है, इंटीरियर डेकोरेटर बन सकता है। ऐसे ही हो सकता है कि किसी बच्चे के अंदर म्यूजिकल एप्टीट्यूड हो, वो बैठे बैठे ही आपने मतलब टेबल पे ही टैप करते करते उसके अंदर रिदम हो सकता है उसके अंदर। ये देखा होगा आपने कि बाजारों के अंदर कुछ वो करतब करने वाले लोग जो होते हैं, रस्सी बांध लेते हैं बांसों के ऊपर, और एक छोटी सी बच्ची बांस लेकर रस्सी के ऊपर चलती है। वो भी एक खास किस्म की इंटेलिजेंस है। तो इस तरीके से हमारे पास सब लोगों के पास अलग अलग, तो आपने अपनी रेलेवेंस देखनी है। तो पहला है आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, दूसरा मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, रेलेवेंट टू योर एप्टीट्यूड, और तीसरी चीज है जो लास्ट में इसके अंदर आया टी से मतलब है टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैंने जिंदगी में कामयाब होना है, मैंने आईएएस बनना है। मान लीजिए कि आपने अपना आईएएस का एम बनाया, मैंने आईएएस बनना है। नंबर एक चीज स्पेसिफिक हो गए, 10 रैंक से नीचे लेके आना है, ये आपका मेजरेबल होना गया। चूंकि आप पढ़ाई में अच्छे हैं, मेहनती हैं, आपको लगता है मेहनत कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए वो गोल अटेनेबल है। क्योंकि बच्चों पढ़ाई में एक चीज और आपको टिप देने वाला हूं कि आप कितनी देर बैठते हैं इससे तय हो जाता है। अगर आप 12 से लेकर 14 घंटे डेली पढ़ाई करने की क्षमता रखते हैं तो आप भारत का कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। अब आपकी बैठने की क्षमता कितनी है उसके अकॉर्डिंगली अटेनेबल है या नहीं है। अब अटेनेबल है क्योंकि आप 5, 10, 8 घंटे पढ़ सकते हैं, अटेनेबल हो गया। अब आपकी वो क्षमताओं के अकॉर्डिंगली है, क्योंकि आपको लिखने में, आपको जनरल नॉलेज में, आपको बोलने में बहुत अच्छा महसूस होता है, तो आपकी एप्टीट्यूड भी वैसा हो गया। अब आप लगाइए कि मैंने 2 साल के अंदर आईएएस बनना है। अब जब ये सारी चीजें आप अपने दिमाग को समझा देंगे तो प्यारे बच्चों आपका दिमाग अपने आप ही काम करना शुरू कर देगा, फिर आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। और वो एक सलमान खान का भी डायलॉग है ना, कि एक बार मैंने जो अपने आप से कमिटमेंट कर ली उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो याद रखिए, जब आपका दिमाग अपने आप से कमिटमेंट कर लेता है, जब उसको आपने सही निर्देश दे दिया है, आपका दिमाग सही काम करता है नहीं करता। लोग कहते हैं मेरी यार बुद्धिमत्ता नहीं है, मेरा एप्टीट्यूड नहीं है, कुछ नहीं है, सब लगभग लोग एक जैसे बराबर ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम अपने दिमाग को सही इंस्ट्रक्शन नहीं देते। अगर आपने सुबह 4 वाली बस पे कहीं जाना हो, 4 बजे कहीं जाना हो, और आपके दिमाग के अंदर चिंता हो, तो आपका दिमाग आपको 3 बजे उठा देता है। ये आपके दिमाग का, इसको दिस इज कॉल्ड आइडियो मोटर। ये आपके दिमाग की शक्ति है, आपके दिमाग की शक्ति है। अगर आपने सोचना शुरू कर दिया आप हार जाओगे, तो आपका दिमाग आपको हराने के लिए तैयार करने लग जाता है। अगर आपको लगने लग जाए कि आप दिमाग की जो है शक्तियां हैं, आपकी बॉडी की जो शक्तियां हैं वो अनलिमिटेड है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे मैंने देखे हैं जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं, उन्हीं में से एक स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी होती है, जिसके अंदर कई बार बंदे के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि उसको संभालने के लिए 4-4, 5-5 लोग चाहिए। आखिर वो ताकत कहां से आती है? जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर डोपामिन का इंबैलेंस होता है, और डोपामिन के कारण आती है। तो याद रखिएगा, आप समझिएगा चीज को कि एक शक्ति, एक इंसान के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो 4-5 बंदों के बराबर की होती है शक्ति।
लेकिन वो शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता। आप जिस हॉल में अभी बैठे हुए हैं, इस हॉल की एक दीवार अगर मैं कह दूं कि सभी बच्चों ने कोई औजार नहीं बाहर से लेकर आना, आपने इस दीवार को तोड़ना है, तो क्या आप इस दीवार को तोड़ पाएंगे? सभी बच्चे दीवार की तरफ देख रहे होंगे, लेकिन आप दीवार को नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई औजार नहीं है दीवार को तोड़ने का। लेकिन अगर मैं आपको यह कह दूं कि अगर सभी बच्चे जो इस समय इस हॉल में बैठे हैं, उन सबको दीवार तोड़ने के बदले में सभी को 10-10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 10-10 करोड़ रुपए, तो फिर अब आप कहोगे सर चाहे हमारे हड्डियां टूट जाएं, चाहे हम कुछ भी इस्तेमाल करें, हम इस दीवार को तोड़ देंगे। इसका मतलब दीवार तो आप तोड़ सकते थे, लेकिन आपने एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी कि भाई इतने में तोड़ूंगा, इतने में नहीं तोड़ूंगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों की जो पावर्स हैं, आप लोगों की जो शक्तियां हैं, वो अनलिमिटेड हैं, और आपने अपना एक स्मार्ट गोल बनाना है, आंखों के अंदर चमक लाने के लिए बड़े सपने देखने हैं जिंदगी में कामयाब होने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति बुद्धिमत्ता से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। दुनिया भर में खोज हो गई है कि इंटेलिजेंट लोग जिंदगी में आमतौर पे फेल हो जाते हैं। कामयाब कौन लोग होते हैं? वो लोग कामयाब होते हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, मेहनत करते हैं। आप सोचिएगा कि जब आपके दोस्त सो रहे हों, सोशल मीडिया देख रहे हों, उस समय आप अपनी किताब लेकर पढ़ रहे होंगे, तो आपको जिंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बतौर मनोवैज्ञानिक, बतौर काउंसलर, बतौर एक अनुभवी आदमी होने के नाते मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में पेड़ों पे पैसे लगे हुए हैं। हमारे छोटे शहरों के बच्चे कनाडा, न्यूजीलैंड, ये जगहों पे जाने के बारे में सोचते रहते हैं, सपने भी देखते रहते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि आज भी भारत के अंदर, इंडिया के अंदर मल्टीनेशनल्स कंपनी या दूसरी कंपनियों के अंदर ऊपर वाले कम से कम 40 से 50% पोस्टें खाली पड़ी है और आप लोगों का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि उनको कोई योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं। जो लोग कहते हैं हमें काम धंधा नहीं मिला, जो कहते हैं हमें नौकरी नहीं मिली है, मैं आपको यह बता दूं कि आज की तारीख में पैसे की कोई समस्या नहीं है। आज की तारीख में हमारे जो बच्चे हैं, जो अर्न करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो बच्चे कोई 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, कोई 3 लाख रुपए महीने की सैलरी ले रहा है, 5 लाख की ले रहा है, 6 लाख की ले रहा है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर एक बिहार का बच्चा पढ़ा रहा है, आम सी फैमिली का, सैलरी कितनी है? 17 लाख रुपए महीने की, जनरल नॉलेज पढ़ाता है। तो ये सारी क्षमताएं आप लोगों के पास हैं। आप में और उनमें सिर्फ इतना अंतर है कि आपके पास बड़े ख्वाब नहीं होते हैं, आप लोग अपने स्मार्ट गोल नहीं बनाते हैं, आगे बढ़ने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। अब आप देखिएगा कि वैसे जब हम बात करते हैं किसी से, तो हम अपने उदाहरण नहीं देते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी उम्र 58 होने वाली है। इस अक्टूबर में मेरी उम्र 58 ईयर्स हो जाएगी और मैं लगभग 22 साल की उम्र में लेक्चरर लगा था। आज की तारीख में सारी साइकोलॉजी, सारी थ्योरीज मेरे टिप्स पे है। उसके बावजूद भी आपको जान के हैरानी होगी कि मैं हर रोज 2 घंटे पढ़ाई करता हूं, हर रोज मेहनत करता हूं अपने शरीर पे, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। 58 ईयर की एज के अंदर जब मैं रिटायर होने वाला हूं, उस समय मैं अपनी जिंदगी की दूसरी पारी खेलने के लिए उससे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं जितनी आप सब लोग बैठे कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो रोज नए शब्द सीखते हैं? कामयाबी का एक फार्मूला मैं आपको सिंपल सा और बताना चाहता हूं। अगर आप जिंदगी में जितना टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है, आपके प्रोफेसर आपको क्लास में पढ़ाते हैं, जितना ट्यूशन पे आपको पढ़ाया जाता है, अगर आप उतना हर रोज करते हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखना, जिंदगी में आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि कामयाब होने के लिए आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। जो क्लास में आपके टीचर खड़े होते हैं, आपको उससे ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, आपको उससे ज्यादा बुक रीड करनी चाहिए, आपके पास नॉलेज उससे ज्यादा होनी चाहिए, तब आप अपने आप से कामयाबी की उम्मीद कर सकते हैं। और लास्ट में एक बात बहुत जरूरी,
कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। मैंने देखा कि कुछ बच्चे जिम वगैरह में जाते हैं, मसल्स वगैरह बना लेते हैं और फिर उनका चलने का ढंग चेंज हो जाता है। याद रखिएगा, आप लोगों को बाउंसर नहीं बनना है। आप अपनी बॉडी रखिएगा, जिम जाइएगा, डंबल कीजिएगा, लड़कियां मर्जी कैसे बाल बनवाइएगा, किस तरीके का रंग करवाना है बालों पे, सब कुछ कर सकते हैं आप लोग। लेकिन याद रखिएगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी, आपके जेस्चर्स, आपके पोस्चर्स वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। वो आपके इर्द गिर्द के जिस चीज के लिए आप बनना शुरू करते हो, अगर आपने आईएएस बनना है तो आप आज से ही अपने आप को उसके अनुरूप तैयार भी करना शुरू कर दें, ताकि आपके दिमाग को पता चले कि भैया वो हमारा जो गोल है उसको पूरा करना है। और सबसे जरूरी चीज यह है कि जब भी बैठिएगा, मैं इस समय आप लोगों को बता नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में यहीं से बताना चाहता हूं कि एक तो जब भी कुर्सी पे बैठिए तो अपनी पूरी सीट के ऊपर बैठिएगा और आपकी जो पीठ है वो आपकी बैक सीट के साथ लगी होनी चाहिए। जब भी जिसके साथ बैठिएगा, आपके जो नीज हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं, उसी तरफ होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप जिसकी तरफ भी, जिससे आप मिले, हल्का सा आपका झुकाव उसकी तरफ होना चाहिए, ताकि उसको लगे कि आप उसको अटेंशन दे रहे हैं। ये बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं जो जिंदगी में आपको कामयाब बना सकते हैं। बहुत लंबी कहानियां हैं, बहुत लंबी बातें हैं। फिर कभी आप लोगों से मिलना होगा तो हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। आप लोगों ने बड़े धैर्य से, बड़े प्यार से सारी बातें सुनी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डीएवी कॉलेज का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। शेफाली मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी बच्चों का बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your insightful and informative talk. I hope the students will definitely be benefited from it and it will definitely help them for their overall development. Sir, आपके विचार सुन के मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं, जहाँ पे आपने कहा था बच्चों को कि हमें मुर्गे मुर्गियों जैसा नहीं बल्कि बाज की तरह बनना है। तो मैं वो कहूंगी, खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो इसी अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अपने सामने रख कर, सेट कर कर उसको प्राप्त करने के लिए पूर्णतः हमारे बच्चे, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जरूर प्रयास करेंगे और एक दिन अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। Head of the Department of Physics, Dr. Rajesh Khatri, for the vote of thanks. Dr. Rajesh Khatri. Thank you very much, Puri Sahab, for delivering a very nice talk, as well as we are thankful to have such a delighted speaker with us. Thanks to technology. And मेरी एक कॉल पे आपने मेरा रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ आपका। और मेरे स्टूडेंट्स से डेफिनेटली दे विल बी मच बेनिफिटेड बाय योर टॉक, बिकॉज के हमारी साइंस बैकग्राउंड की वजह से हम कई बार बच्चों से इतनी बात नहीं कर पाते जो कि उनके कैरियर मेकिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। तो वो टिप्स आपके जरिए इन बच्चों तक पहुंचे और शायद ये बच्चे भी, और आपने जो बात बड़ी अच्छी कही कि हर बच्चा अपने आप में इक्वल है, गॉड ने सभी को बराबर बनाया है, बस सिर्फ सॉफ्टवेयर का फर्क है। दिमाग में आपके क्या है, आपका माइंड कैसे डिक्टेशन देता है, ये चीजें वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और एक बात मैं मेरी तरफ से कि जो मैंने सीखा है कि कंप्लीट के लिए 2 सब्जेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, एक तो फिजिक्स और एक साइकोलॉजी। मैन ऑफ फिजिक्स, यू आर ए मैन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हमें ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने में, और फिजिक्स हमें
स्टडी ऑफ मैटर और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने में बड़ी हेल्प करती है. तो आवर वर्ल्ड इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो आज शायद वो समावेश वैसे बच्चे हैं और वैसे जो ह्यूमन बिहेवियर है वो सब आपने क्लियर करने की कोशिश की. थैंक यू वेरी मच. एंड मैं भी समाप्त करूंगा कि आई एम थैंकिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ माय प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज अबोहर, from the Department of Physics, from the Department of Chemistry and Career Counseling Cell and IQAC committee, and from my all dear students. Definitely they will be much benefited after listening or after implementing your talk in daily life. Thank you very much, Puri sir. Okay. Thank you. Very good. Thank you so much, sir.